छत्साल सर। सर लाइन पर हैं। हाँ, स्टार्ट किया जाए। सर सर इंट्रोडक्शन दीजिए विदाउट नेम। Sir, I am from Lucknow. I have passed my 10 plus 2 from Lucknow Christian Inter College with 74% marks. Then afterwards, I have joined Indian Air Force. And meanwhile in service, I have completed my graduation from mathematics. Then afterwards, I have done my post graduation from public administration. And my optional in public administration in this attempt. My hobbies are defense news analysis, cricket, as well as cooking. And your medium of writing? Sir, English. हिंदी मीडियम में लिखे हैं? English, sir. इंग्लिश लिखे हैं, गुड। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लिए हैं? Yes, sir. क्या हेल्प करेगा आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? Sir, the study of the public administration helped me a lot in my during my service career. Sir, whatever we read in a public administration, it will also has a practical aspect of the administration. Likewise, there are many theoretical aspects for public better management, better administration, as well as we read about the Indian administration during our post graduation and graduation. So I think that it will always being very specific. Suppose in current scenario, we are in whatever public administration are being running. Take it on the path of Kautilya's guideline, like 7 principles. So part one by one, just elaborate how it is same as Kautilya was following. Sir, basically, sir, I have not very aware. I was not remember that, sir, 7 part, but I can correlate with this public administration of nowadays, sir. Okay. Likewise, sir. First of all, sir, there is a concept of monarchy. It was not in Indian administration, but moreover, the policy making is made by the government, and in the Kautilya era, it was mainly done by their Amatya as well as the Raja. And nowadays, it policy making are making we choose our government, which acts as a democratic monarch, we can say. Second is, sir, it has established. Now there is monarchy, democracy, but in our day-to-day life, we say Modi government, Manmohan Singh government, we say Indira government. So this indicates toward the unity of governance. So by then it was also there. There were consent of people, but still we say. So how you differentiate ancient time and current time? What is the major changes? Sir, there are difference between, sir, participation of the public, sir. First of all, in ancient times, sir, in a administration, there was less participation of the public. And nowadays, it was now by the civil societies, NGOs, as well as government and people. Second one, sir, I can see, sir, now it was very decentralized. In the ancient time, it was very centralized. Third one, sir, better accountability was now in days. Transparency was now in days. Third one is, sir, now better integrity as well as the better service. What is meaning of integrity? Sir, basically integrity, sir, means honesty to the organization. Wait, question is asked. जो पूछा गया क्वेश्चन वो ये है कि जो कौटिल्य के जो सिद्धांत हैं उसका व्यवहारिक रूप से अभी क्या उपयोग हो रहा है, ये पूछा गया। उस पर आप जवाब दें कि कौटिल्य के जो 7 प्रिंसिपल थे उसका आज व्यवहारिक रूप से प्रयोग हो रहा है या नहीं, और क्या अगर हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है,
ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। सर जो व्यवहारिक उपयोग हो रहा है सर कौटिल्य का, वो है सर कि उसने हमारे साथ वो सिद्धांत दिए थे कि कैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है सर, जो उसके बेसिक सिद्धांत थे। उसी सिद्धांत मोर ओवर सर वही सिद्धांत अभी भी हमारे वहाँ पे क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी लागू है सर। जैसे कि सर रेवेन्यू के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर जनता रेवेन्यू देती है तो उसका वेलफेयर किया जाएगा। तो ये मतलब हमारा अभी भी गवर्नमेंट में है कि रेवेन्यू जो हमें मिलता है, प्राप्त होता है, वो हमें जनता को ही हम उसमें वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। और सर अभी करेंटली आई वाज नॉट वेरी अवेयर ऑफ दिस। जैसे ये जो अभी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो जीडीपी के कितने %? अराउंड सर रेवेन्यू कलेक्शन सर अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, बट सर अप्रॉक्स 19% है सर। 19%? Never in the history of India. Chasal ji, go on. सर Yes. अच्छा, if we talk about policy, public policy formulation, Sir. where will you find yourself if you have been appointed as an SDM? in a sir policing formulation sir, SDM mainly. Did you get my point? Sir. Yes, go ahead. सर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एसडीएम सर मेनली सर इसको एग्जीक्यूशन के पार्ट में आता है सर, और जो फीडबैक है पॉलिसी का उसमें भी मतलब एसडीएम का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और क्योंकि एसडीएम का मेन रोल होता है सर कि जो भी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, पॉलिसी आ रही है, उसको लार्जली अपने एरिया में एग्जीक्यूट करना। नहीं, आप अभी किसी भी एक पॉलिसी को लीजिए, उसमें आप रोल करके बताइए। सपोज अभी कोरोना पीरियड है, इसमें आप एक एसडीएम के रूप में पोस्टेड हैं एक सब डिवीजन में, आप पॉलिसी में क्या चेंजेस करिएगा, क्या फॉर्मुलेट करिएगा, क्या इनपुट डालिएगा? सर पॉलिसी के हिसाब अगर मैं सर एज एसडीएम होगा तो मैं जो भी गाइडलाइंस आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, WHO की, एज वेल हेल्थ मिनिस्ट्री की, सर मैं उसको अपने लोकल रूप में उसको देखने की कोशिश करूंगा कि लोकली वो कैसे अच्छे से फॉर्मुलेट कैसे। मैंने बोला जो पॉलिसी बनना है, जो बना हुआ है चल रहा है वो अलग है, जो भविष्य में बनना है उसमें एक एसडीएम किस तरह से अपना रोल अदा करेगा, कोई एक एग्जांपल लीजिए, उसमें बताइए। सर एक जैसे भीलवाड़ा के एग्जांपल सर एक अच्छा एग्जांपल है सर, वहां पे जहाँ पे कोरोना फैला था उसको कंटेन करने के लिए, तो सर वहां पे उन्होंने अपना क्या कहते हैं कंटेनमेंट जोन को बढ़ाया था, कि कंटेनमेंट जोन को बढ़ाया था, लार्जर पार्टिसिपेशन किया था सर वॉलंटियर्स का, थर्ड अवेयरनेस बढ़ाई थी अपनी जनता के अंदर, फोर्थ सर लॉ एंड ऑर्डर को, तो सर जो ये लॉ एंड ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं उसके आधार पर कोई पॉलिसी बना और उसको इंटीग्रेटेड रूप में लागू किया गया, ऐसा है? अभी सर इसके बारे में सर अभी अवेयर नहीं हूँ सर मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम किसी भी थिंकर्स की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की बात, राइट फ्रॉम वुडरो विल्सन टू एल्टन मेयो और हूसोएवर वेयर देयर, तो ये सारे लोगों का अगर देखते हैं तो ये सारे लोगों का 1950 तक क्या मोटिव था, जो भी प्रिंसिपल दिए थे उसका क्या पर्सपेक्टिव था? सर मेजरली सर जो 1950 तक था सर, वो पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अपने सब्जेक्ट के तौर पे सर स्थापित नहीं था सर, तो इसका सबसे पहले ये तो मेजर जो थ्योरी दी है वो किस चीज पर फोकस था? सर मेनली सर ये क्लासिकल थ्योरी इन्होंने दी थी कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है सर। लाइक सर वेबर ने दिया था कि हाउ एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सेकेंड सर अपना जैसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में दिया था अल्टीमेट पॉइंट क्या था, वो जो थ्योरी कोई भी दे रहा है, जैसे आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं,
आपका अल्टीमेट पर्पस है कि हमें पीसीएस का ऑफिसर बनना है, बट जो भी थ्योरी दिए हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या था, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्यों थ्योरी दिए? सर उसका सर पॉलिटिकल साइंस से हटके एक नया सब्जेक्ट बनाना सर, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया सब्जेक्ट के तौर पे इसको पूरे तरह, क्योंकि सर उस फिर सब्जेक्ट पब्लिक का क्या गोल था? सर सब्जेक्ट का गोल था सर कि एक सुचारू एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था को लागू किया जा सके सर। आप पढ़े होंगे कि ऑल थिंकर्स, क्लासिकल थिंकर्स वेर फोकस्ड ऑन इकोनॉमी एंड इफिशियंसी। यस सर। इसमें इकोनॉमी और इफिशियंसी दोनों का डेफिनेशन बता दीजिए। सर बेसिकली इकोनॉमी का मतलब सर यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कम रिसोर्सेज में अपने गोल्स को अचीव करना है सर, कि जब हम कम से कम रिसोर्सेज के द्वारा हम अपना गोल अचीव कर सकें इस इकोनॉमी में। जैसे कि अभी के टाइम में हम एक मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को देख रहे हैं। और इफिशियंसी सर क्या है सर? इफिशियंसी सर, हाँ इफिशियंसी सर, इफिशियंसी का मतलब है सर कि जितने भी रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सर। लाइकवाइज की अगर, हाँ दोनों तो सेम ही बोल रहे हैं। हाँ इफिशियंसी में सर अंतर है सर, ये मेनली सर एचआर से ही रिलेटेड होती है कि जो मैनेजरियल इफिशियंट मैनेजर कैसे अपने पॉलिसी को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है, ये एफिशिएंसी है सर। कि अगर किसी भी कार्य को करना है तो उस कार्य को कई तरीकों से किया जा सकता है, उसमें सबसे बेटर तरीके से किस तरह से किया जाए, यही एफिशिएंसी प्रदर्शित करती है। अगर एक एसडीएम की एफिशिएंसी की बात करें तो क्या बताइएगा, कैसे इफिशिएंट है? सर मेरे हिसाब से सर जो भी पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करनी है सर, उसको कम से कम रिसोर्सेज में वो कर सके और उसके बेटर ऑप्शन कर सके। अच्छा आप ये बताइए, जैसे कि हम दोनों में कन्वर्सेशन चल रहा है, अगर आपकी इफिशियंसी की बात कहें, हम दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन चल रहा है, इसमें इफिशियंसी क्या कहलाएगा? इसमें सर कि कम से कम अपनी बातों से मैं अपनी पूरी बात को रख सकूं सर। गुड गुड, यही मैं पूछ रहा था। गुड, गो अहेड। आगे अगर देखें तो जो थिंकर्स आए उन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया, इससे इंडिया जैसे देशों को क्या फायदा मिला? सर बेसिकली कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट एफडब्ल्यू रिक्स ने दिया था सर, और वाल्डो ने भी इसमें काफी काम किया था। तो इसमें इंडिया, उन्होंने क्या है अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को केवल एक डेवलप्ड कंट्रीज के तौर पे ना देखे, डिफरेंट कंट्रीज के और भी उन्होंने देखा कि कैसे सोसाइटी किसी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। लाइकवाइज सर इंडिया एक फ्यूज मॉडल में आता था, तो उन्होंने इसमें बताया क्या कि बोलते हैं इस चीज को क्या बोलते हैं? ये है सर फ्यूज। सबसे पहले सर इसका आएगा प्रिज्मेटिक साला मॉडल सर। नहीं, आप या हम जो भी काम करते हैं उस पर एक एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है, इस पर उन्होंने इसी। अच्छा, प्रिज्मेटिक साला मॉडल क्या था सर? बेसिकली सर ये एक साइंटिफिक डेवलपमेंट था एफडब्ल्यू रेस का, साइंटिफिक थ्योरी के आधार पे आधारित था कि उन्होंने एक प्रिज्म को लिया था एक सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, कि कोई सिंगल रेज आती है तो लाइक एगेरियन हो गया सर वो, और उसके बाद वो जब प्रिज्म के अंदर जाती है तो वो अपने कई भागों, कई अपने विबोर में बट जाती है, तो वो अपना क्या कहते हैं फ्यूज मॉडल हो गया, और जब वो बाहर निकलती है तो वो डिफ्रेक्टेड हो जाती है। नहीं ये, लेकिन ये सोसाइटी में किस किस चीज को इंडिकेट किया? ये तो वहाँ वो एक सिंबॉलिक था, सोसाइटी में व्यवहारिक रूप से क्या था? सर व्यवहारिक रूप में सर लाइकवाइज उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया सर, डिपार्टमेंट में उन्होंने देखा इसको कि एडमिनिस्ट्रेशन में कई, जैसे फ्यूज मॉडल में कई एक ही डिपार्टमेंट कई सारे काम करते हैं, और वो इन डिफरेंट। जी सर आगे बढ़ा जाए। ओके गुड सर। अच्छा आफ्ताब जी, ये आपने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस है ना,
सर तो ये क्या होता है गवर्नमेंट और गवर्नेंस? सर गवर्नेंस सर एक प्रोसेस है सर, और गवर्नमेंट सर उसका एक टूल्स है दोनों को बेसिकली डिफाइन सर। करना दोनों को हाँ डिफाइन सर, लाइक सर गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन हो सकती है जिसका मेन काम गवर्नेंस है सर। तो गवर्नेंस को एक प्रोसेस, एक वर्क बोला जा सकता है गवर्नमेंट का। तो मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में सर उन्होंने यही कहा कि कम से कम इंस्टीट्यूशन को रख के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गवर्नेंस कर सके। नहीं, आपको बताना है कि सरकार क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। बेसिकली सर गवर्नमेंट इज अ इंस्टीट्यूशन which is democratically or monarchical elected by the people. It can be sir elected, nominated or by the various means sir to govern or sir to make the policy for the their state. और गवर्नेंस क्या, उस गवर्नेंस को कीजिए। Sir basically sir governance is a sir policy making or sir policy execution और पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड फीडबैक सर प्रोसेस सर, वेयर जैसे कि गवर्नमेंट के जितने भी कार्य हैं वो गवर्नेंस के अंदर आएंगे, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो गया या कोई भी वेलफेयर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो ये गवर्नेंस के अंदर में आ गए ये सारे कार्य। आप बीए के स्टूडेंट है, आप इसको अच्छी तरह से डिफाइन करना चाहिए आपको। एनीवे, अच्छा बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बाद में जोड़ा गया, सर कब जोड़ा गया था? सर 1975 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सर रिकमेंडेशन पे। और कौन सा अमेंडमेंट था? सर 42 अमेंडमेंट था सर। 1966 में जोड़ा गया सर 1976। तो हमारे देश सर मूल संविधान में इसको क्यों नहीं जोड़ा गया और क्या आवश्यकता पड़ी कि बाद में इसको जोड़ा गया? बेसिकली सर शुरुआत में जो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है सर वो कोरिलेटेड थी, एंड शुरुआत में सर हमारी इसका कोरिलेशन बाद में बिगड़ गया। सर पहले सर इसको सर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे सर, तो उन्होंने राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया था एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और उन्होंने कई सारे संविधान को देखा था जहाँ पे ड्यूटीज वेल डिफाइंड नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में उनके, रादर देन अदर एक्ट थे। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इसको बाद में या आगे आने वाले समय के लिए ओपन एंडेड छोड़ा था। वही तो हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी पर फोकस क्यों नहीं किया, आखिर क्या ऐसा परिस्थिति था जो उनको फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ी? बेसिकली सर क्या उस टाइम उनका ज्यादा अभी पक्ष फंडामेंटल राइट्स की ओर था। और अच्छा, एनीवे आप एयरफोर्स में किस पे लेवल पे हैं? सर अभी मैं सर कॉर्पोरल के पद पे हूँ सर। और पे लेवल क्या है आपका? पे लेवल 8 है सर। 8 है। तो आपके लायक तो हमको लगता है यहाँ बहुत कम पद है बिहार लोक सेवा आयोग में, तो क्या बात है, मतलब युद्ध शुरू होने वाला है, इसको देख के आप डर के भाग रहे हैं वहां से क्या? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है सर। बेसिकली सर अभी क्या कहते हैं बिहार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर पास से लोगों के लिए काम करने का मौका मिलता है सर। ग्रेजुएशन का क्या सब्जेक्ट था आपका? सर मैथ था सर। ग्रेजुएशन में मैथ था, उसके बाद आप फिर एयरफोर्स में गए और आपका वैकल्पिक विषय पीए है, मतलब सब एकदम डिस्क्रीट है। तो आप एयरफोर्स के नॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन में कोई यूज देखते हैं? सर इसका सर काफी यूज है सर। मोरओवर सर ये जो हमारी लीनियर ब्यूरोक्रेसी है सर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव में अपनी यूज होती है सर, उसका कहीं ना कहीं यूज अपना सिविल सर्विसेज में भी देखा जाता है सर। थर्ड वन सर आजकल जो आर्म फोर्सेस का स्कोप है सर वो काफी बढ़ गया है। इट वाज नॉट ओनली इन सर
on the for the defense purpose. It also work in disaster management और भी मेनली अपना जितना पॉलिसी फॉर्मुलेशन है गवर्नमेंट का उसमें भी काफी मतलब यूज होता है। तो मैं देखता हूँ सर कि जो अपनी मिलिट्री की नॉलेज है उसमें जो डिसिप्लिन है, इंटीग्रिटी है और जो भी हमारी जितनी भी क्वालिटीज हैं जो हमने डेवलप की है अपने ड्यूरिंग द सर्विस वो हम अच्छे से यूज कर सकते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में सर। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर इंडिया अभी रसिया से S-400 चाहता है, S-400 क्या है बताइए। सर ये सर सैम है सर, सरफेस टू एयर मिसाइल सर, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और ये मोबाइल ट्रांसपोर्ट है सर, मोबाइल ट्रांसपोर्टेबल है और हाईली मोबाइल है सर। इसे हम कहीं भी ले जाके यूज कर सकते हैं सर। कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यस सर। सर अच्छा, आपकी हॉबी है डिफेंस न्यूज को पढ़ना, सर तो जैसा कि आपको पता होगा जो इंडियन नेवी जो है सर वो अपने रिसोर्सेज में खास करके पूर्णतः स्वदेशी की दिशा में आगे बढ़ चुका है। पार्डन सर। इंडिया इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी में इंडियन नेवी बहुत आगे बढ़ चुका है, यस सर। जबकि एयरफोर्स उस मुकाबले में बहुत कम है। ऐसा क्यों? सर जो बेसिकली सर इंडिया के जो एयर फोर्सेज है उसमें जो अपना एविएशन सेक्टर है सर उसके लिए केवल एक PSU थी अपने यहाँ, HAL थी और उसके सब्सिडरी में जितनी है लाइक DDL और DRDO की जितनी भी सब्सिडरी है वो इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं रखती थी। रादर देन जो हमारी आज के जो हमारी एयरफोर्स की जरूरत है सर वो काफी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी की है जो कि अन्य देशों में 4 जैसे लाइक जो फाइटर जेट्स हैं वो आज 4th जनरेशन 5th जनरेशन अवेलेबल है, जबकि हम अभी तक अपना तेजस विकसित कर पाए हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो हमारा मेजर कंस्ट्रेंट रहा है सर कि उसमें R&D हमारा एयरफोर्स में ज्यादा अभी विकसित नहीं तक हुआ। हम इंजन क्यों नहीं बना पाए? हाँ सर जो सर हमने कावेरी इंजन डेवलप कर लिया है तेजस के लिए, बट सर जो मेजर उसमें कंस्ट्रेंट था सर वो मेटलर्जी का था सर कि हमारी इंडिया में मेटलर्जी के R&D डिपार्टमेंट उतना सक्षम नहीं था सर। अच्छा, अपने यहाँ डिफेंस डील बहुत चर्चा रहता है ना, और डिफेंस डील यस सर। अपने दलाली के कारण चर्चा में रहता है। यस सर। तो क्या आपको नहीं लगता है जो दलाली को जो डिफेंस में जो है ना लीगल कर देना चाहिए? बेसिकली सर हमारे यहाँ जो डिफेंस डील होती है सर वो 3 लेयर होती है सर। लाइकवाइज सर हमारे जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम डिफेंस डील नहीं करते सर। हम सर जैसे हमें डिफेंस डील करनी है तो हमने अपना राफेल का डील किया तो वो हमने राफेल में तो सरकार कर रही है जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। सर ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अप्रूव्ड डील है सर, बट ये जो मेजर डील है वो हमारी डसॉल्ट कंपनी से हुई है सर। तो इस वजह से सर जो हम इसमें जो दलाली का स्कोप है सर वो थोड़ा बढ़ जाता है, पर हम सर अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हमने बनाया रिसेंटली में तो उसकी वजह से अब ये सर काफी कम हुआ है सर और नियर फ्यूचर सर ये काफी कम हो जाएगा। तो लड़ाकू विमानों में फाइटर प्लेन्स में सिंगल इंजन डबल इंजन होता है ना? यस सर। ये बताइए क्या क्या काम का फायदा क्या है दोनों का अलग अलग? सर जो अपने जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है लाइक मिग है और ये सब सर इनकी जो कैपेबिलिटी है सर वो लो लेवल फाइटिंग की है सर, रादर देन जो डबल एयरक्राफ्ट है सर उनकी रीचेबिलिटी ज्यादा है और उनके जो टास्क है वो डिफरेंशिएट है सर। लाइक सुखोई सर एक्ट एज ए फाइटर as well as somewhere it has also act as a bomber sir। हाँ सर। मैथ की कुछ मेमोरी है या खत्म कर चुके हैं? सर बेसिकली सर अभी जब हमने ग्रेजुएशन किया था सर वो थर्ड टाइम आई वाज इन अर्ली फेज ऑफ ट्रेनिंग सर, तो मैं इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया था सर क्योंकि उस टाइम मुझे। ठीक है, ओके। अभी जो डिस्प्यूट है इंडिया चाइना का, ये माना जाता है कि
It is expected from cabbage policy of China. यस सर। ये कैबेज पॉलिसी क्या है? सर ये जो कैबिज पॉलिसी है सर चाइना की, ये स्लामा स्लाइसिंग भी कही जाती है सर इसको। इसमें सर उनका क्या है कि वो फर्स्ट वो उस क्षेत्र पे आते हैं और वहां पे अपना मतलब अपना अधिकार ना रख के दूसरे को डिनाई करते हैं एक्सेस के लिए, एंड देन आफ्टरवर्ड सर उस एरिया पे वो अपना अधिकार जमाने लगते हैं। इनको अगर उसके बाद नेगोशिएशन स्टार्ट होता है सर, और नेगोशिएशन में वो क्या है, 2 कदम आगे चले, 4 कदम आगे चले और 2 कदम पीछे चले वाली नीति पे काम करते हैं। तो बेसिकली सर ये जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है सर चाइना की, उस पे वर्क करती है। अभी जो गलवान घाटी में जो चर्चा हुई थी कि भारत सरकार का कहना था कि वो वापस उन्होंने खदेड़ दिया, कहीं वो कैबेज पॉलिसी से कुछ एरिया को कवर तो नहीं कर लिए हैं उन्होंने? नहीं सर, अभी तक तो सर ऐसी रिसोर्सेज नहीं आए कि हम मतलब वहां पे कोई कब्जा अनुसार किया है। रादर देन हमने अभी बेसिकली सर ब्लैक टॉप पे हमने अपना कब्जा वापस ले लिया है बेसिकली 29 और 30 तारीख को। और एलएसी सर वहां का मेन कंटेंशन है सर, एलएसी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है सर। वो मैकडोनल्ड जो उस पे है सर रेखा पे, उस पे कार्य करती है, तो वो अभी तक वो एक्सेप्टेबल नहीं है पूरी तरह चाइना को। चाइना उसको अपना लद्दाख को अभी भी अपना इंटीग्रेटेड पार्ट मानता है। तो इस वजह से सर वहां पे ये पूर्णतः स्पष्ट न होने की वजह से ज्यादा मेजर रोल है, पर इंडिया ने अभी जो कहा है, जो उनका पुराना स्टेटस क्यो है उसको मेंटेन कर रहा है इंडिया। कहा जाता है कि ट्रैक 3 टूल जिसके हिसाब से हम प्रेशर कर सकते हैं चाइना को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए, आप क्या सहमत हैं इससे? यस सर, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा हम कर सकते हैं सर उससे। ट्रैक 3 होता क्या है सर? ट्रैक 3 होता क्या है? ट्रैक 3 सर बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी है सर, कि जो इकोनॉमिक टाइज है हम उनको उसकी वजह से हम उनको पीछे कर सकते हैं, जिससे जैसे हमने उनका इंपोर्ट्स कम किए हैं, उनके एप्स को बैन किया है, और सर जितने और मतलब और भी काम किया जिससे उनकी इकोनॉमी हिट कर रही है सर। और इंडिया उन चाइना का बहुत बड़ा मार्केट रहा है सर, तो चाइना की कहीं ना कहीं तो इंडिया में बहुत सारे आर्थिक हित निहित है, तो उसकी वजह से चाइना को हम कंटेन कर सकते हैं सर। अच्छा, अभी इंटरनल कुछ बहुत सारी समस्याएं आई थी सीएए को लेकर के, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लेकर के, और आप मुझे बताएं कि सीएए का प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली सर मेरे हिसाब से सीएए का जो प्रॉब्लम है वो परसेप्शन का एक प्रॉब्लम है, कि लोगों में थोड़ा सा ये परसेप्शन गलत बनाया गया था कि इससे किसी की नागरिकता जा सकती है। और दूसरा है सर इसको सिटीजनशिप को क्लासिफिकेशन हम धर्म के आधार पे कर रहे हैं, बट ये सर कि ये पूर्णतः सत्य नहीं है सर। ये गवर्नमेंट के पार्ट में आपको कुछ कमी नजर आती है? सर गवर्नमेंट का सर ये थोड़ा सा कंसेंसस का सर इशू था कि हम मुझे लगता है कंसेंसस ज्यादा कम्युनिकेशन गैप की जरूरत थी, लोग समझा नहीं पाए, ठीक है ना? यस सर। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है उस पे भी काफी चर्चा है, कंट्रोवर्सी है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही है या नहीं। आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली सही है ये? सर जो उसमें सर प्रोविजन था सर कि 370 को कैसे हटा सकते हैं, तो वो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसके द्वारा उसको पारित किया जाना जरूरी था, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाद में स्थगित हो गई थी, और जो वहां की लेजिस्लेचर थी वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम करती थी। बट इन दैट टाइम सर ये लेजिस्लेचर तो अभी वहां पे था नहीं और प्रेसिडेंट रूल था, तो जो गवर्नर थे वो एक्ट एज ए लेजिस्लेचर कर रहे थे। तो इस वजह से ये इसमें हम कह सकते हैं सर कि ये पॉलिसी कहीं हद तक सही थी कि हम उसको अमेंड कर सकते हैं। और दूसरा सर ये अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है सर, तो बेटर अभी इसका जो पक्ष है सर वो
रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। डिफाइन स्टेट एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के अनुसार स्टेट को डिफाइन करें तो। बेसिकली सर जो अपना इंडिया है सर वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है सर। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 and 36. सर इन आर्टिकल 12 एंड 13 सर, स्टेट एज स्टेट जो हमारा सर है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है किसी भी टाइप की जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को या किसी भी अपने राइट्स को अपना हनन करती है, उसके बारे में कहा गया है। ये लाइक सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है सर, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकती है सर, और कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, कौन सा, या लेजिस्लेचर हो सकता है सर, और अपना एग्जीक्यूटिव हो सकता है, जुडिशरी हो सकती है। अच्छा ओके, चलिए आज आपका इंटरव्यू हम समाप्त कर रहे हैं। अब एज इट इज हो जाइए, मुझे लगता है सर टेंशन में थे। यस सर, पहला इंटरव्यू था सर मेरा, तो इसलिए सर थोड़ा मैं सर टेंशन में था फर्स्ट मॉक। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि टेंशन नहीं आनी चाहिए इंटरव्यू में, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए सर। टेंशन भाग करके वो आप टेंशनाइज कर सकते हैं, अगर आप एज इट इज रहेंगे तो वो अच्छा जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और भी चीज है, क्वेश्चन जो पूछना जा रहा है तो पहली बार आप 10 सेकंड या 15 सेकंड का पॉज लें, बढ़िया से समझें और तब आंसर दें, क्योंकि जो आप टर्म को या वर्ड को बढ़िया से सुने, ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। पॉज ले लेंगे तो क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, आप बेहतर तरीके से आंसर दे देंगे। और दूसरा एक और चीज है, जैसे मैंने मैथ में पूछा आपसे, तो आपके पास भी नहीं ध्यान में है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि तब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसकी आंसर आपको नहीं पता होगी। जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि फ्लो में बहुत सारी चीजें गलती हो जाती है, निगेटिव एस्पेक्ट है, तो वो आप सुने बढ़िया से पॉज लेकर के, जो आपको ठीक ना पता हो उसको, ठीक है।